So is there a chat option in this Google Meet? Yes, sir. So how can I see chat? So just swipe your screen. So do I need to go back here and then you can see? I can see. Yeah, that the option on the right side. Yeah, that's the one. But when I shared my PPT, it will not be there, right? No, you'll have to come on this window. Oh, that's a terrific thing. All right. Okay. So Because should we start now? every time I have to do like this. Yes. Oh, I'll let you know if you'll have any queries in the chat section. okay. Yes, that will be a good idea. Yes. Yeah. So how many people so far? 39 people are there. Shall we start? Yeah, sure. We can start now. Okay. Okay. Good morning, everyone. I'd like to call Sakshi for taking this session further. Sakshi, are you there? Yes, Yeah, Prachi. please proceed. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to today's session. On behalf of Training and Placement Cell of PVGS College of Engineering, I represent a very warm welcome to our today's expert, Mr. Ritesh Kumar sir. The topic for today's session is self-marketing in modern times. Before getting started, I would like to introduce today's expert. Ritesh Kumar sir is a certified trainer and voice-over artist with a background of a sales and operations with successful career span of 14 years across consumer product sector. He has worked as a sales and marketing consultant and trainer with Dubai-based VV and Sons firm. He has also worked as a head of sales department with a Neuro Wellness. He has trained various peoples in sales, soft skills, personality development, employability, body language, anger management, and voice accent modulation. He has done voiceover for various companies and clients. For example, Maruti Suzuki, DLF, RBS Lubricants, Online Radio Pocket FM, My Home Care, My Village City Apps, and Kids India. All right. Thank you very much, Sakshi, for this lovely introduction. Thank you. Hello, everybody. My name is Ritesh Kumar, and today I am here in front of you, and I'm going to talk about. In fact, we are going to talk about self-marketing in modern world. So I know I'm sitting somewhere in Mumbai, and you are in Nasik city. So am I visible to all of you? Can you see my face? Yes, Yes, sir. sir. Oh, you can see the PPT and also my face as well, right? Yes, sir. Wow, that's amazing. I cannot see your faces. All right. So today we are going to talk about self-marketing in modern world. I'll keep talking in Hindi also, so that we are quite comfortable with it. So, what is self-marketing? Any idea what is self-marketing? Self-marketing is marketing ourselves. That's it. अपने आप को दुनिया को बताना कि मैं कौन हूं, मुझ में क्या है, that is self-marketing, right? Sorry. So self-marketing, as name suggests, to promote oneself in the market. It helps individuals grow their image and reputation to advance their career. All right. Today in this webinar, we are going to discuss how to brand yourself. We all are a product and we have to know how to sell ourselves to the market. Then only we can get some price, some salaries, some monies from the companies, right? So before that we have to brand ourselves. All right. Second is make an attractive packaging. Define your selling points. Basically, rough language में बोले तो resume building. Third is approach the market for opportunities, for job opportunities. How should we go about it?
जब मैं कॉलेज में था तो हमें ये गाइडेंस नहीं मिला था, विच वी रिपेंट। नंबर 4, हाउ टू प्रेजेंट इफेक्टिवली एट द इंटरव्यू। कई बार क्या होता है, आप जिंदगी में कितने भी अच्छे हो, लेकिन इंटरव्यू में आपने अच्छा नहीं किया, यू आर गॉन। रिमेंबर द डायलॉग ऑफ शाहरुख खान, चक दे इंडिया। ये 70 मिनट तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे अजीज है, सबसे कीमती है जो तुम्हें देने हैं। याद है आप लोगों को? तो यही वो टाइम होता है इंटरव्यू के टाइम में। आपने कितनी अच्छी तैयारी करी, आप में कितना टैलेंट है, ओके, बट इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए उन खास मिनटों में, देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट। Alright, so we'll see how to present effectively at the interview and finally get the deal confidently. Alright, so let's start. So can you see the picture? This picture I have taken from a simple grocery store. Can somebody tell me what do you see in this picture? Did you see some toothpaste? Yes, sir. So there are so many toothpaste. So which toothpaste is prominent? Can you take the name of the brands? Which is very prominently visible? सबसे आराम से अच्छे से कौन सा ब्रांड दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में? सर कोलगेट। कोलगेट, उसके बाद Pepsodent. पेप्सोडेंट, उसके बाद रेड डाबर। डाबर। Okay, so these 3 brands are visible, right? So this is about a small store. If you go to a mall, superstores, hypermarket, वहां भी आपको यही सब ब्रांड्स दिखते हैं, राइट? सो एक बड़ा स्टोर हो या एक छोटा स्टोर हो, हर स्पेस की कीमत होती है, और वो स्पेस आपको तब मिलती है जब आप में कुछ हो, आप में कुछ क्वालिटीज हो, आपने कुछ कस्टमर के लिए दिया हो। और भी ब्रांड्स हैं, जैसे अजंता है, एंकर है, अमर है, और पता नहीं कितने ब्रांड्स हैं, बट दे आर नॉट हियर बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो व्हाई दीज ब्रांड्स आर देयर? कुछ कारण होगा, तभी ये ब्रांड्स हैं। छोटे से स्टोर में भी हैं जहां पे इतनी कम स्पेस है, उसके बावजूद ये ब्रांड्स वहां पे प्रेजेंट है। ऑल द ब्रांड्स, राइट? So there are some reasons. Can you guess some reasons? So these are some of the reasons. Trust, रेपुटेशन है, इन्होंने एक रेपुटेशन बिल्ड करी है अपने कंज्यूमर्स के माइंड में। जो इनको खरीदते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड करा है बहुत सारे सालों से, ठीक है? दूसरी, इनके पास कुछ क्वालिटी है, तभी हम खरीदते हैं। थर्ड, गुड पैकेजिंग, इनकी पैकिंग भी स्टैंडर्ड है। एक जैसी तैसी पैकिंग रहेगी तो आप भी नहीं खरीदेंगे, उन्हें पता नहीं कौन सा ये माल है, राइट? सो पैकेजिंग, गुड फिनिशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी इंपॉर्टेंट लाइन, अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल है या नहीं। सपोज एक दुकानदार ने ऑर्डर किया कि मुझे कोलगेट 6 पीस दो, और उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास या जो भी रिटेलर है, जो भी शॉपकीपर या सेल्स पर्सन है, उसके पास कोलगेट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा वो? या तो वो ढूंढेगा दूसरी जगह, और नहीं मिला तो दूसरे टूथपेस्ट वहां पे चले जाएंगे, राइट? So that is why you have to be available. You have to build trust. Same thing applies to you. You are also a product. आप भी एक ब्रांड हो। Your name is Sakshi, Vijay, Ritesh, anybody. You are a brand. You are a product. तो आपको भी एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एक क्वालिटी आप में होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू है और आप घर पे हैं, आप छुट्टी मनाने गए, तो क्या होगा? Somebody else will take it, right? So these 4 are the parameters which has to be there in you. Okay, अब आते हैं actual definition पे। Brand yourself. A personal brand is rooted in the minds of people in the market. थोड़ा marketing वाला definition है, don't worry. Personal branding is the effort to communicate and present your value to the world. आप में कोई वैल्यू हो तभी आपको मौका मिलेगा। कोई वैल्यू एडिशन आप नहीं कर सकते किसी के लिए, तो सॉरी, आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट? तो मैं बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपकी कॉलेज लाइफ से और पर्सनल लाइफ से। यू नो व्हाट, हमारा जो लाइफ है वो
since you guys in the college, तो हमारी लाइफ एक कॉलेज लाइफ की तरह नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ कॉलेज लाइफ. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर हमारा लाइफ हो, so it's not like a college life. Okay, let me mute it here. So but it is like a school. क्या difference है school life और college life में? Can somebody tell me? With regard to popularity. Can somebody tell me any differences? Come on fast. School life में और college life में क्या difference है? So the school life is quite strict as compared to college life. Strict है. Okay, very good. All right. And strict है, वहां पे ड्रेस है, डिसिप्लिन है, और कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं होता. ऑल राइट, ठीक है, वेरी गुड. एनी अदर डिफरेंसेस? ओके, लेट मी टेल यू. In college life, what happens? Everybody has a group. Everybody has a small group. उसका एक फिक्स छोटा सा ग्रुप होता है. वो साथ में जाएंगे, साथ में खाएंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में मूवीज देखेंगे. तो you make yourself a small group. कि यार मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मिलके छोटे हो जाते हैं. लेकिन स्कूल में ये चीज नहीं होती है. स्कूल में इफ यू वांट टू बी पॉपुलर, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. हर कोई पॉपुलर स्कूल में नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं. कॉलेज में हो जाते हैं बिकॉज स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. बट स्कूल में यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट बाय डूइंग समथिंग. कुछ लोग हेड बॉय होते हैं, कुछ लोग हेड गर्ल होते हैं, बट उन्होंने कुछ किया होता है. So you are there alone in the school life, but in college life with you there are 3-4 people, 5-6 people, जितना बड़ा आपका group है. So this world is also like that. You have to be disciplined, you have to work hard to make your recognition, make your पहचान बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना पड़ेगा, तभी आप पॉपुलर होंगे, तभी आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए. So much nice. Alright. So इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड होने से आपको ये पॉपुलैरिटी मिलती है. इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड होने के 3 फायदे हैं. टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. आपको मार्केट में अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और यू हैव मोर एक्सपोजर, यू हैव बेटर चॉइसेस. और मोर एक्सपोजर है, बेटर चॉइसेस है, तो इसका मतलब मोर मनी भी है. राइट? इट्स वेरी सिंपल. More opportunities, 3 benefits of an effective personal brand. More opportunities, more exposure, better choices, and more money. All right, so let's get ahead. So now how to make a personal brand? क्या करना पड़ेगा हमें अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए? The first thing is you have to know who you are. मैं हूं कौन, मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, राइट? Who am I? ये जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू बिकम अ पर्सनल ब्रांड. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू नो अबाउट यू. व्हाट इज योर स्टोरी? बिफोर टेलिंग योर स्टोरी टू समबडी एल्स, यू हैव टू नो हु यू आर. आप हैं कौन, आपकी स्टोरी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. राइट? सो एवरीबडी नोज. मुझे लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. जब मैं पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस करने गया था, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, अब मुझे लगता था कि ये छोटी छोटी हाइट मेरे हाथ, आई वाज वेरी टॉल एट दैट टाइम. अभी भी टॉल हूं. तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ये तो स्टेज पे खड़े होकर बोलना बड़े आराम से कोई भी कर सकता है. ये छोटी छोटी लड़कियां जो मेरे से हाफ हाइट की है, दे कैन डू इट वेरी वेल. मैं भी कर सकता हूँ. तो मैंने पार्टिसिपेट किया. लेकिन जब मैं स्टेज पे गया तो मेरा एक पैर इतनी जोर से हिलने लगा कि आई थॉट कि ये हो क्या रहा है. आई स्टार्टेड स्वेटिंग, आई वाज सो नर्वस. बट बिफोर गोइंग टू द स्टेज आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, आई कैन स्पीक वेरी वेल. लेकिन वहां जाने पे असलियत मालूम पड़ा, ओ माय गॉड, आई एम द वर्स्ट स्पीकर, आई कैन नॉट स्पीक वेल. तो कई बार हमारे जिंदगी में रियलिटी का सामना होता है
और हम जो सोचते हैं और रियलिटी में कुछ और निकलता है। तो ये आपके साथ न हो, इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज लिस्ट ऑल योर स्ट्रेंथ। व्हाट डू थिंक अबाउट योर सेल्फ, लिस्ट डाउन इन अ पेपर कि मैं हूं कौन, मुझमें क्या क्वालिटी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, एम आई गुड academically, am I good knowledge wise, am I good, do I have a good personality, do I have a great knowledge, do I sing well, do I act well, whatever is your knowledge, is your strength, write down in a piece of paper to check who you are, right? And list down which are top things you feel you are. और उसके बाद क्या करना है? So this is you. What you think? Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. What do you think you are? आप क्या हैं? सबसे पहले ये जो सर्कल दिख रहा है, ये आप हैं। दिस इज योर परसेप्शन कि ये मैं हूं, ये सब क्वालिटीज मेरे अंदर है। दिस इज मी, राइट? बट दिस इज व्हाट यू थिंक, दिस इज परसेप्शन ऑफ योर्स, आपकी सोच समझ है। और ये पब्लिक सोचती ये आप है। मैंने सोचा ये मैं हूं, लेकिन पब्लिक सोचती कि आप कुछ और हैं। तो क्या करें? So you have to check what people think and how to check. Go to these people, ask, what do you think about me? They will say something कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तुझे लगता है यार कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बड़ा स्टाइल में चलता हूं। तो सामने वाला बोलेगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। तुझे लगता है मैं हैंडसम हूं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। So many times you will find such things which is against your thinking, against your belief. You have to admit that. So go to all the people जो आपके बहुत क्लोज नहीं हो, आपके क्लोज फ्रेंड आपको कभी बेस्ट गाइडेंस नहीं देंगे। So go to those people who are not very much acquainted with you, जो आपसे बहुत परिचित नहीं है, उनके पास जाएं और पूछे कि मैं सर में मुझमें क्या है, क्या लगता है तुझे? On be very open, don't react. गुस्सा मत करो, जस्ट सुनो। हाँ, जो भी बोल रहा है तो मैं मानूंगा, और उसको सुन के लो, उसको थैंक यू बोलो। और फिर आपने जो लिस्ट बनाई है कि आप क्या है और उसने क्या बोला, उसको मैच करो। यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पब्लिक को भी पता होगा, जो आपको भी पता होगा। तो ये परसेप्शन और रियलिटी फ्रॉम द पब्लिक, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो कॉमन चीज है, दैट इज यू, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। यही आपकी खूबी है। और कई बार आपको लगेगा यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, करें मैं इतना ही हूं, मेरी इतनी सारी क्वालिटीज जो इस सर्कल में थी वो सब तो दिख ही नहीं रही है। डूड, दिस इज द टाइम टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स। या तो इस पे काम करो या फिर छोड़ दो। तो व्हेन यू नो कि दिस इज मी, एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली कि भाई दिस इज मी, एंड नाउ व्हाट आई शुड डू, आई हैव टू वर्क अपॉन इट। डोंट रिएक्ट। Okay, let me show you a video, and this clip I have taken from a movie called Mahendra Singh Dhoni. See, when Mr. Dhoni was rejected by Team India, when he was not selected, and to his consternation, to his surprise, Mohammad Kaif was selected. और भी कुछ लोग हैं, युवराज सिंह was selected, और भी कुछ लोग हैं जिसको हम जानते भी नहीं आजकल, वो सब सेलेक्ट हुए थे। सेलेक्ट कौन नहीं हुआ था? महेंद्र सिंह धोनी। लेट्स सी, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. Great. Yes, sir. So keep me updating if it's visible, something is not working. All right. So did you realize कि आप में कुछ चीजें हैं और आप you're proud of those things, but in reality something is different. The same happened with Mahendra Singh Dhoni when he realized कि Yuvraj Kaif and other people got selected. I did not get selected. तो वो disappoint होने की बजाय he started working on it. इतने से काम नहीं चलेगा, और करना पड़ेगा। That's what you have to do. Find what you are and then work upon it. So my second step is script your story. Now you know who you are. Now you have to script your story. अपनी स्टोरी बनानी है, ठीक है? अब अपनी स्टोरी कैसे बनाएंगे हम? सिंपल, जो आपको पता चला, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो, जिसको स्ट्रेंथ बनानी है उस पर भिड़ जाओ, उस पर लग जाओ। वेरी सिंपल, राइट?
ओके, दिस इज एजेनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। नाम सुना है आप लोगों ने? एजेनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। सो एजेनहावर एक बंदा था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 50s 60s, जब हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे उस टाइम पे इस प्रेसिडेंट ने एक एक काम किया, उसने डिफाइन किया। उसके पास बहुत सारे काम थे और वो कई बार वो काम करने में असफल हो जा रहा था। उसने क्या किया कि उसने अपने सारे काम को दो चीजों में डिवाइड किया, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। कौन अर्जेंट है और कौन इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का चार्ट बनाया। ठीक है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा स्टीवन कवे के बुक में, जो बाद में स्टीवन कवे ने वहीं से लेकर पॉपुलर किया। सो नाउ वी नो इट। ठीक है, तो उसने अपने पूरे काम को 4 भागों में बांटा, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके जो भी काम है उसको इस चारों पे डालो, कहां पे कौन सा काम आपका आता है। राइट, सो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं? एनी आइडिया? एनी वर्क विच इज फॉर यू अर्जेंट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? क्या? Any work which has a deadline, your paper submission, कॉलेज में पेपर सबमिशन के लिए भागते रहते हैं हम लोग लास्ट मोमेंट पे। भाई मेरे टाइम पे तो ऐसे ही होता था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस Yes. इन योर टाइम, बट इन माय टाइम, कॉलेज टाइम, वी यूज्ड टू रन। ओ माय गॉड, कल सबमिशन करना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। वी यूज्ड टू रन लाइक दिस। अर्जेंट इंटरव्यू, आप कॉलेज में गए, सपोज अचानक से न्यूज आया, अरे देयर इज इंटरव्यू, तो क्या करते हो आप लोग? दौड़ते हो, राइट? कि यार ड्रेस 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 चाहिए, टाई चाहिए, जूते ठीक है कि नहीं, आपका सीवी का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, ये होता है अर्जेंट काम, एंड यू हैव टू रश फॉर इट। दिस इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। इंपॉर्टेंट तो है, डेडलाइन है, इंटरव्यू है, जॉब का सवाल है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सो बेसिकली इट्स क्राइसिस। So all the crisis related work come here, quadrant 1, urgent and important. Second is not urgent but important. ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो अर्जेंट नहीं हो लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? Can you give me any examples? You have to talk because I cannot see the chat. Sir, Deepak Ahir says exam form submission. Exam form submission is not urgent but important. Yeah. Exam form submission is mostly urgent, I guess. Anyways, और कुछ? So we can say about Yes, assignments. thank you, also. Deepak. Anything? Assignment. You have to think very carefully. I'm saying related to your college work, related to your life, your career, think all those perspectives. अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ये कॉलेज वाले काम जो है, पेपर सबमिशन, एग्जाम का जो भी है, दीज आर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। बट समथिंग दैट इज नॉट अर्जेंट, जिसमें हाँ ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, चलेगा, वो वाला काम, लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, ऐसे कौन से काम होते हैं? थिंक। Sir, Pratik says exercise. Exercise, very good, that's a good answer. Yes, exercise, yes, physical exercise, correct. What else? Going to the gym, yes. What else? Exercise is Watching the important. knowledgeable video on YouTube. Okay, watching knowledgeable videos on YouTube. Okay, it's important but not urgent. Yes, okay, good. Yeah, attending seminars, webinars, that will come here. Okay, what else? All right. Thank you very much. Can you see this? Self-development. आपके जॉब के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? सेल्फ डेवलपमेंट। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर व्हाट? प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज, प्रिपरेशन फॉर योर पर्सनालिटी, एक्सरसाइज, relationship building, planning,
These are important, in fact very important, but not urgent. कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो, और यही करते रहते हैं हम, कल करेंगे परसों करेंगे, और एक दिन पता चलता है कि हम नहीं कर पाए. And these things shift from not urgent to urgent. अर्जेंट हो जाता है. यदि आप इंटरव्यू की तैयारी रोज करते रहो, या पढ़ाई, यस पढ़ाई, if you prepare for your exams every day, do you think that you'll be worried one day before the exam? You will not. लेकिन आप पूरे दिन, पूरे कॉलेज, पूरे साल पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम के पहले टेंशन बहुत जोर होती है कि नहीं होती है? That means that this was important, but you never worked on this important but not urgent. हमने सोचा अर्जेंट नहीं है, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, और ये बाद होते होते चला जाता है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में. कल एग्जाम है भाई, आज पढ़ाई कर ले, रात भर जग जा. राइट? तो सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोई आपसे रूठ गया है या फैमिली रूठ गई है, फ्रेंड रूठ गया है, दीज आर इंपॉर्टेंट, यस बट नॉट अर्जेंट. And planning, these are called not urgent but important. And unfortunately हम इस quadrant को avoid करते रहते हैं, which is most important. So now onwards you have to work on this more. Let's see the third one. Urgent but not important. Interruptions, phone calls, अचानक फोन आ गया घर से, इधर से उधर से, it's urgent. It may not be important many times. फालतू कॉल होगा, किसी का कॉल कभी कभी तो when I'm meeting sometimes, कोई HDFC बैंक वाले कॉल करते हैं, सर लोन है, पर्सनल लोन लेंगे क्या? और मैंने फोन उठा लिया, व्हाट इज दिस यार. तो इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट वाज अर्जेंट. ईमेल, वॉक-इन्स, कोई आ गया, आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से कोई आ गया, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बिकॉज दिस इज अर्जेंट. बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट. बॉस ने बुला लिया, सपोज आप काम कर रहे हो, बॉस ने बुला लिया बिना कुछ काम, क्या कर रहा है तू, दैट इज अर्जेंट बिकॉज बॉस ने बुलाया, जाना पड़ेगा, बट दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट. राइट? एंड द लास्ट वन इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट. आई एम सॉरी टू से दैट नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पे हमको सबसे कम टाइम देना चाहिए, हम सब लोग सबसे अधिक टाइम यहीं पे देते हैं. टीवी, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, प्लेजेंट एक्टिविटीज, गॉसिप, गेट टुगेदर, टाइम पास, हम सबसे ज्यादा टाइम यहां पे स्पेंड करते हैं जहां पे सबसे कम स्पेंड करना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन दिस चार्ट एंड मेक श्योर कि आपकी लाइफ के लिए, आपके जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है क्वाड्रेंट नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. राइट डाउन देयर एंड वर्क ऑन इट. सो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इज you need to take immediate action. मजबूरी है, लेना पड़ेगा. Second is not urgent but important, that is value addition. इसकी प्लानिंग करो आप और इस पर ध्यान दो. Third one is distraction. Delegate it, मतलब किसी और से करवा सकते हो तो करवाओ if possible. इसको पोस्टपोन कर सकते हो तो पोस्टपोन करो because it's just a distraction. You can take the phone and call, sir बाद में कॉल करता हूँ मीटिंग में. This is the way. And last one is time pass, which you should avoid, या बहुत कम करना चाहिए. All right. So ये बातें हो गई कि टास्क कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आप जान गए. नाउ कितना टाइम किसको देना चाहिए? इमीडिएट एक्शन, आपकी लाइफ में सिर्फ 5 से 10% टाइम लेना चाहिए इमीडिएट एक्शन को. वैल्यू एडिशन, 70% of your personal time should be given to this quadrant. Value addition, exercise, planning, public speaking course, learning English. What else? Interview preparations, reading good things, enhancing your knowledge. These things require more time. Of course, I'm talking about your working time. Distraction में 10 से 15% और टाइम पास में 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं. If you check your life, and I'm sure I can guarantee you कि आपका मैक्सिमम टाइम जाता होगा, सबसे कम जाता होगा नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में, जहां पे आपको सबसे अधिक टाइम देना है. Okay, so this was how to spend your time on task
अपने काम में कौन से काम पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, दैट इज इट. I hope it is clear. Any questions so far? Anybody has any question? No, sir. Did you understand it? Is in our decision matrix? Yes, sir. Okay, great. So let me move ahead. So now we understood कि कौन से टास्क में कितना टाइम देना चाहिए to better our career. Now किस टाइप के आदमी को कितना टाइम देना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है. So we have these kind of people. 3 kind of people we have in our life. Mentors, guide, whom you look up to. जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, मतलब आपके प्रोफेसर्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, आपके मेंटर्स हो गए, जिनसे आप सीखते हो कुछ अपनी जिंदगी में, कुछ वैल्यू एडिशन करते हो, वेबिनार, सेमिनार्स, ऑल दीज थिंग्स. So these are the people you must give maximum time. You should give 50% of your time to such people. अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं, जिनके साथ आप एग्जाम देते हो, जिनके साथ आप करियर की तैयारी करते हो, उनको आपको देना चाहिए 30%. एंड पीपल जो आपके फॉलोअर हैं, आपके चाहने वाले हैं, योर बेस्ट फ्रेंड्स और अदर पीपल, यू मस्ट गिव ओनली 20%. So this is the people time management. 50, 30, 20. I hope it is clear. So all right, this was 2 steps. Know your story and script your story for personal branding. Now tell your story. अभी हमने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर ली, अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली, कहां पे काम करना है, कितना काम करना है, कितना टाइम किसको देना है, और कौन सी स्किल पे काम करना है. दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 2, राइट. एंड नाउ कम्स थर्ड, टेल योर स्टोरी. अब अपनी कहानी पूरे वर्ल्ड को सुनाना है. अब अपनी कहानी पूरे वर्ल्ड को सुनाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि who am I, what to do for that. Again, there are 3 steps. Approach as many people as you can in your college, in your knowledge, who you think are relevant. जो आपके लिए relevant हो, काम के लोग हैं, उनको अप्रोच करो. हर किसी को अप्रोच करो कॉलेज में, और उनको बताओ, उनसे पूछो, and then listen to them. कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उनको सुनो कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेट देम स्पीक, एंड इफ यू हैव एनी एक्सपर्टीज ऑन दैट, ऑफर हेल्पिंग हैंड. फॉर एग्जांपल, सपोज आपके कॉलेज में somebody is there who is smart in computers, so let him approach everybody. Hey dude, तुझे सीवी बनाने में कोई दिक्कत है तो मुझे बता, I'll help you out. तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे यार सीवी नहीं बन पाया, या मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता. Hey, I am expert in that. I can help you out. तो उसको आप हेल्प करो. So this is a way to tell your story. अपनी स्टोरी हेल्पिंग वे में बताओगे तो बहुत जल्दी आप पॉपुलर हो जाओगे. लोगों के माइंड में बैठ जाएगा, हाँ, दिस गाय इज हेल्पफुल, दिस गाय इज गुड इन कंप्यूटर्स और एनी अदर सब्जेक्ट, दिस गाय हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही गाइड्स मी ऑन हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू फेस द इंटरव्यू. तो आपकी पर्सनैलिटी काफी इंप्रूव होगी, लोग पॉपुलर हो जाओगे आप. एंड जब भी किसी का रिकमेंडेशन आएगा, यू विल बी द फर्स्ट गाय टू गेट ऑल दोज रिकमेंडेशन, एंड यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. अप्रोच, लिसन एंड देन ऑफर हेल्पिंग हैंड. तब ऑफर हेल्प करो. ओके, सो दीज वर पर्सनल ब्रांडिंग, राइट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक an attractive packaging, define your selling points, update your CV. तो सीवी किस तरह की होनी चाहिए, सीवी में क्या होना चाहिए जॉब में जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले. विल टॉक अबाउट दैट. सो आई विल शेयर 8 पॉइंट्स फॉर योर रेज्यूमे. ऑलराइट, सो वो 8 पॉइंट्स आपके रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दैट. ओके, नंबर 1, tailor it as per demand. So why do I write tailor it? What does tailor it means? Any idea? Tailor it means क्या होता है? Sir, to prepare it properly in the sequence. It To should be prepare it sequence. properly in the sequence. Okay, very good, very good. Any other answers? It आप should कपड़ा have a proper खरीदते हो? matter.
It should have a proper matter with the good subjects. गुड सब्जेक्ट डिटेल्स, ओके, वेरी गुड। ओके, जब हम कपड़ा खरीदते हैं आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं पता है? मॉल में जाते हैं, रेडीमेड कपड़ा उठाते और पहन लेते हैं, पैंट शर्ट लाइक दैट। इन जॉब मार्केट ये फंडा काम नहीं करता है कि हम रेडीमेड गए, प्रभु के शोरूम में गए, पीटर इंग्लैंड के शोरूम में गए और जो कपड़ा फिट किया, पहन कर देखा, टेस्ट किया, चले आए। ये चीज जॉब मार्केट पे काम नहीं करता है, राइट? सो यू हैव टू कस्टमाइज इट, यू हैव टू टेलर इट। दर्जी के पास जाना पड़ेगा, अपनी नाप देनी पड़ेगी, फिर सिलवाना पड़ेगा, ठीक है? तो हर कंपनी की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। एवरी कंपनी इज डिफरेंट, दे हैव गॉट अ डिफरेंट पॉलिसी, दे हैव गॉट अ डिफरेंट कल्चर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये टाटा वाले हैं, ये इनका अलग तरीका, ये रिलायंस वाले हैं, इनका अलग तरीका है, ये कोलगेट वाले हैं, इसका अलग तरीका। हर किसी का अलग तरीका है। आप इसको टाटा वाले को रिलायंस की बात करोगे, दे विल बी एंग्री विथ यू। तो दैट इज वाई टेलर इट, अपनी सीवी को फिर से बनाओ और एज पर द डिमांड बनाओ। जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कंपनी के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करो, शुरू से बनाओ, किसी की कॉपी मत करो। हम बहुत पैसा देते हैं मार्केट में ये बनाने के लिए किसी और को, दिस इज रॉन्ग। सो हर जॉब कंपनी के लिए उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसको क्या चाहिए एंड अकॉर्डिंगली बनाओ। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, बर्गर मांगते हो और वो आपको खिचड़ी दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपने जो मांगा उसको वही देना पड़ेगा। सिमिलरली हर कंपनी को वही चाहिए जो उसको चाहिए, तो वही दो आप उसको, सिंपल। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही सीवी हो हर कंपनी के लिए, उसी को घुमा फिरा कर भेजते रहो। नो, यू कैन हैव 5 सीवीज, अलग अलग स्टाइल में सीवी बना के रखो और हर कंपनी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करो और एक फोल्डर बनाकर नाम लिख लो, हाँ दिस आई गिव टू टाटा, दिस आई गिव टू रिलायंस, दिस आई गिव टू एक्सेंचर, लाइक दैट। तो अपनी सीवी को फिर से बनाओ एज पर द डिमांड, एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। Okay, the second point is size matters. Size always matters. Your CV has to be short and crisp. किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपका पूरा सीवी पढ़े 3 पन्ने का, 5 पन्ने का। नो, सीवी 1 से 2 पन्ने से अधिक तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। सॉरी, आई एम सेइंग समटाइम्स सीवी समटाइम्स रेज्यूमे, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो आपकी सीवी रेज्यूमे कभी भी 1 से 2 पन्ने से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में ही होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी सीवी को देखे, स्टडी करे। सॉरी, उनके पास कुछ सेकंड्स का टाइम होता है और सीवीज उनके पास हजारों में होती है, राइट? और हर सीवी किसी ने किसी का कॉपी किया रहता है, तो वैसा मत करो आप लोग। सो एज पर योर सीवी, it should be in A4 white colored पेपर। यू मस्ट फॉलो टाइम्स रोमन और जो भी एक स्टैंडर्ड एरियल या जो भी एक फॉर्मेट है राइटिंग का, उसमें हेडिंग होना चाहिए, उसमें सब हेडिंग होनी चाहिए। और यस, प्लेंटी ऑफ वाइट स्पेस, मतलब सीवी में काफी जगह खाली होना चाहिए जहां पे कुछ वो लिख सके, इंटरव्यूअर लिख सके। आंखों को जगह चाहिए दिखने के लिए। किसी भी जगह में कितना भी अच्छा तरीके आप फैला दो, आप चारों तरफ फूल ही बिखेर दो, तो भी वो कचरा जैसा दिखता है, राइट और रॉन्ग? आप कितनी भी अच्छी चीजें आपके पास हो लेकिन उसको बिखेर दो तो वो कचरा जैसा दिखता है। और बहुत अच्छी चीजें ना हो लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके से सजा कर रखा गया हो, दैट लुक्स गुड, राइट? सो अपने सीवी में बहुत ज्यादा चीजें मत लिखो, सही तरीके से लिखो और स्पेस होना चाहिए। जो व्हाइट स्पेस अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वैसा स्पेस दिखना चाहिए उसमें। हर जगह सब कुछ भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी में बहुत सारी चीजें ना लिखें। नंबर 3, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। किसी भी कंपनी को आप किसके बेटे हैं, आपके कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, आपने क्या किया है, आपने आपकी किससे पहचान है, इससे किसी को मतलब नहीं है।
उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, व्हाट इज योर अचीवमेंट, व्हाट आर द स्किल्स यू हैव, ये दो चीजें ही चाहिए। और वो मैच करता है कि हाँ मेरी कंपनी के हिसाब से ये मैच करता है, यस ही इज अ गुड कैंडिडेट, दैट्स इट। तो ये चीजें आप हाईलाइट करो, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट। क्वांटिफाई योर अचीवमेंट, नंबर 4, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट। व्हेन आई से क्वांटिफाई योर अचीवमेंट, मतलब जो भी आपकी अचीवमेंट है उससे क्या फायदा हुआ। बिजनेसमैन लोग क्या बातें करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, इससे मेरा फायदा कितना होगा, हाउ मच आई कैन अर्न फ्रॉम दिस। सेम थिंग इज लाइक सेम थिंग इज विद दीज गाइज, इंटरव्यूअर, यार इससे फायदा क्या होगा, मुझे इसको लूंगा तो मेरा काम अच्छा होगा क्या, उसको सिर्फ इससे मतलब है, राइट। सो गिव डिटेल्स कि मैंने ये प्रोजेक्ट करा तो इसका ये फायदा हुआ, मैंने ये प्रोजेक्ट करा तो इससे ये फायदा हुआ, इस कंपनी को फायदा हुआ, मेरे कंपनी में ये सुधार हुआ, मेरे कॉलेज में सुधार हुआ। तो ये टाइप की चीजें आप बताएं कि दीज वर द बेनिफिट्स फ्रॉम माय अचीवमेंट। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, कई बार आपके साथ ऐसा होगा, यू आर सिटिंग इन अ वेटिंग रूम, जहां पे आपके सामने एक बंदा बैठा होगा जिसके पास 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, एंड ही इज ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द सेम पोजीशन। आप फ्रेशर हो एंड दिस गाय हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और कई बार हम लोग डर जाते हो, माय गॉड इसके पास 10 years का एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश। So don't worry about it. It is said that experience is less important than achievement. Experience important नहीं है, achievement important है। आपने जिंदगी में देखा होगा कई लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग उनको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, राइट। ओ माय गॉड इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है यार, बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन मुझे बताओ, एक चोर डाकू भी बूढ़ा होता है, तो क्या चोर और डाकू बूढ़े होने के बाद रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन बन जाते हैं? उनकी क्वालिटी तो वही रहती है ना। सेम थिंग अप्लाइज हियर, एक्सपीरियंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अचीवमेंट इज इंपॉर्टेंट। आई हैड अ बॉस व्हेन आई वाज वर्किंग विद मदर डेयरी, जब वो मेरे साथ मार्केट में काम कर रहे थे तो मैंने बताया कि सर ये बंदा, आई वाज रेफरिंग सम गाय टू हिम, आई टोल्ड हिम सर दिस गाय हैज 10 years of experience। तो सर ने पता है क्या बोला मुझे, रितेश आई डोंट केयर हाउ मेनी years of experience he has, I don't care, what I care is 10 साल में उसने क्या किया है। यदि उसने एक ही टेरिटरी में 10 साल निकाला है, एक ही एरिया में 10 साल निकाला है, मतलब कि उसने, उसके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है और उसको उसने 10 बार किया है, मतलब एक ही साल का एक्सपीरियंस उसने 10 बार दोहराया है, दैट्स इट। So again I'm saying experience is not important, achievement is important. So quantify your achievement कि आपके करने से किसको क्या फायदा हुआ, that is important and everybody is looking for that, okay। And the last and the fifth one is select your hobby with interest and care. So these इन चारों पॉइंट में कोई दिक्कत, any confusion so far? These were very simple, I guess. Any confusion? You have any point, any questions to ask so far? Please, you can ask. You can chat so that Sakshi can read it. No, sir, no queries. No queries so far? Oh, you must have some queries. If you don't have queries, मतलब कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो. If you don't have queries, it means आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो. So you must have some queries. All right. Number 5, select your hobby and interest with care. So practically, I have been to so many colleges in Maharashtra, Kolhapur, Nasik, Pune, Mumbai, Nagpur, and everywhere I find some TikTok stars. Everywhere. So I'm not saying that if you're a TikTok star, it's bad. I'm not saying that. लेकिन ये हॉबी आप एक कॉर्पोरेट कंपनी को बताओ तो हाउ विल ही टेक इट?
you are going for an engineering, chemical engineer position, something in production or something in warehousing management, something like that. वहां पे बताओ मेरा hobby है, I'm a TikTok star. So is it related to your work? I like to make so many videos of TikTok. तो ये क्या वहां पे काम आएगा? I don't think so, काम आएगा. हाँ, आप कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो, कुछ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के लिए जा रहे हो, तो शायद काम आ सकता है, लेकिन वहां पे काम नहीं आएगा. सेलेक्ट योर हॉबी एंड इंटरेस्ट विद केयर कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं बात करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बी प्रोफेशनल. नो फंकी ईमेल आईडीज लाइक बहुत लोग लिखते हैं dashingvijay@gmail.com, dashingsonam@gmail.com, beautifulsonam@gmail.com. इस तरह की ईमेल आईडी ना बनाओ प्लीज. मेक इट वेरी सिंपल. vijaychauhan@gmail.com. सिंपल आपका नाम होना चाहिए और ज्यादा फंकी चीजें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज दैट डजंट लुक प्रोफेशनल. नंबर 6, ओमिट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. आपकी सीवी में जो भी अननेसेसरी है लेकिन आपको पसंद है लेकिन सामने वाले के लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसको हटा दीजिए. पुट योर वर्क हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑन टॉप. योर स्किल्स, अचीवमेंट, स्ट्रेंथ सबसे ऊपर होना चाहिए. ये मैं हूं. नंबर 7, गेट अ सेकेंड ओपिनियन. इफ यू हैव मेड अ सीवी, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ टेलर्ड अ सीवी, गेट अ सेकेंड ओपिनियन. उन लोगों को जाकर दिखाओ अपना सीवी जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं, जो सीनियर्स हैं, जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं, आपके पहचान में नहीं है, उनको दिखाओ. अब पूछो सीवी कैसी है और बाद में बताओ कि मेरी सीवी है. पूरा फीडबैक ले लो कि कैसी सीवी है, क्या आपको लगता है इसमें से. दे विल गिव सर्टेन फीडबैक्स. उसके बाद बोलो सर ये मैं ही हूं. तो दैट विल गिव यू अ रियल आंसर कि आपने सीवी कितनी अच्छी बनाई है, लोग क्या इसको पढ़ के समझ रहे हैं. दैट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस कि इंटरव्यूअर उसको कैसे लेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 8, हैव अ कवरिंग लेटर. ऑलवेज हैव अ कवरिंग लेटर. जब भी आप सीवी भेजो साथ में कवरिंग लेटर होना चाहिए. डियर सर, my name is this, I'm applying for this post, I have some experience in this field, I hope it will be beneficial for your company, please find my CV attached here with name Mahesh, like that. तो एक कवरिंग लेटर होना बहुत जरूरी है. All right, so these were some of the CV making fundas which you must use when you make your CV. All right, now let me talk about something. When I interview some people and I ask, what is your quality? Most of the people say, sir, I am hardworking. I am hardworking. See, hardworking होता क्या है? And everybody is hardworking. So पहली बात, you have to select your strength कि क्या है, कितना बताना है. And also hardworking जैसे शब्द बहुत used to हो गए हैं, बहुत लोग यूज कर रहे हैं. तो क्यों ना हम कुछ अच्छे वर्ड को यूज करें आपकी सीवी में. एंड वाइल फेसिंग द इंटरव्यू, लाइक diligent. Diligent means shows real care in one's work or duties. इस वर्ड को आप हार्ड वर्किंग की जगह पे यूज कर सकते हो. diligent मतलब अपना काम इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाला. collaborative, ability to work in team मतलब टीम वर्कर की जगह पे इस वर्ड को यूज कर सकते हो. डिटेल ओरिएंटेड, पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, इसको यूज कर सकते हो स्ट्रेंथ में. पर्सनेबल, व्हाट इज पर्सनेबल? प्लीजेंट मैनर्स, इजी टू अप्रोच. इफ यू से सर आई एम वेरी पर्सनेबल मतलब आई एम इजी टू अप्रोच, आई हैव प्लीजेंट मैनर्स. सो एक वर्ड ने काफी कुछ बोल दिया. इन वर्ड्स को सीवी में डालो या फिर यूज करो अपनी लाइफ में इंटरव्यू के टाइम पे. रिसोर्सफुल मतलब स्किल्ड, दे कैन इजीली ओवरकम द प्रॉब्लम. रिसोर्सफुल वो होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेता है थ्रू हिज कॉन्टैक्ट, थ्रू हिज नॉलेज, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुल. प्रोएक्टिव, somebody who takes initiative, somebody who takes action to control the situation. Adaptable मतलब flexible, organized, etc.
So these are some keywords which is a must for the interview. इन सब वर्ड्स को यूज करो, इनको प्रैक्टिस करो, लेकिन एक एक नोट है, इन सबको इंटरव्यू से एक दिन पहले मत यूज करना। आपको यूज करना है तो अभी से यूज करना चालू कर दो, अभी लॉकडाउन पीरियड से ही। इसको इतना यूज करो कि आपके अंदर घुस जाए कि इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल आराम से निकले, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली निकले, राइट? So this was number 2. We discussed about your personal brand. We discussed about how to make your CV attractive. Now let's talk about the job opportunities. How to go about job opportunities. अभी तक ठीक है? Everybody is in the class? Yes, sir. Well, these are very important informations, and sorry if I'm going faster. Okay. And if any problem, please, you can stop me anytime. Any questions, any problems, you can stop me. I'm there. Okay, third and one of the most important thing is approach the market. How do you approach your market? Job opportunities. This is very crucial. I personally think there are two ways to go for job market, which we have been doing. We have headhunters, matlab consultants. Internet has got three things: company website. आप कंपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो if there is a vacancy. Number 2, job portals. Job portals means Naukri.com, Shine.com, Monsters.com, Monster.com, Headhunters.com, Indeed, Bait.com. There are so many job portals. Update your CV to all these portals. And third is social media like LinkedIn. Do you have your account in LinkedIn? If you don't have, please make it today only. Update your profile in LinkedIn and use a professional photograph in LinkedIn. Right? So this is a networking site for a job. You must go there. And the second one is networking. And in networking, word of mouth and references. So we, all of us are trying with headhunters, internet and job fair. But somehow this networking thing is missing. And today, 30% of jobs are being given by networking for the youngsters. And as you grow older in the system, in the companies, as you grow, as you mature in job market, in your career, this networking improves. And 50% of jobs are being given through networking. If you grow, तो ये काम कल होना है तो आज ही क्यों ना करें? Start building networking. ये रेगुलर बातों काम करो ही, नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर दो आज से. So what is networking? Networking is using links or contacts to broaden job search. अपने job search को broaden करने के लिए, बड़ा करने के लिए, funnel बड़ा करने के लिए हम जो links और contacts को use करते हैं उसको networking कहते हैं. It's very simple. But before networking, we have to decide which industry or types of companies. Sakshi, how much time I have? Sir, it was a 1 hour session, but you may continue. Okay. Okay, so I have to just go a bit faster. All right, so decide which type of industry, types of companies you look for. पहले decide कर लो दिमाग में कि कैसी इंडस्ट्री में जाना है मुझे और किस टाइप की कंपनीज में जाना है. Then start networking. Okay. Now networking कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं which you can first make a list of your contacts. जितने भी आपकी जान पहचान में लोग हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, फैमिली कॉन्टैक्ट, हेड हंटर्स मतलब कंसल्टेंट, कॉलेज अलमनाई, उन सबकी लिस्ट तैयार कर लो. एंड मेक श्योर टू इनवाइट योर कॉलेज अलमनाई. डू यू टेक कॉलेज अलमनाई मीट इन योर कॉलेज? क्या आप पुराने स्टूडेंट्स को बुलाते हो कॉलेज में?
any get together, any kind of party? If you're not, जो पुराने कॉलेज के पास आउट्स हैं उनको बुलाते हो? Yes, sir. नहीं बुलाते? Okay, बुलाते हो. Okay, what do you do that there? Sir, I'm a fresher, so Ravindra sir will speak about it. Yeah, sir, we Okay. used to have get together, and these guys are working on a multinational company. So we will having interaction with the pre-final year and final year students with them. Okay. So my suggestion is every year, Yeah. or in fact, you must arrange 2-3 alumni meet. Call these guys. These are the best resource you have, because and trust me, these guys want some respect जो एक कॉलेज दे सकता है, और कॉलेज से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, उनके पुराने फ्रेंड्स, पुराने गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, क्रश, सब कुछ है. ये सब कॉलेज में आना चाहते हैं. Correct. और उनको टाइम चाहिए. They will come, and you guys, you first year, you final year students, you have a great chance with them. उनको बुलाओ, उनको interact करो, उनको एक मौका दो, and they will give you chances for the job. This is the best resource you can have for your networking, your senior pass outs from the college. Okay, so when you make a list of contacts, then categorize them. ABC कैटेगराइज कर लो, कौन बेस्ट कॉन्टैक्ट है, कौन कम कॉन्टैक्ट है, कौन अच्छा नहीं है उतना. ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू दीज गाइज एप्रोप्रिएटली. इनको कैसे इंट्रोडक्शन देना है? यू मस्ट गिव प्रॉपर इंट्रोडक्शन. इसमें लोग बहुत गलती करते हैं इंट्रोडक्शन देने में. कोई कॉन्टैक्ट मिल गया, सीधा CV भेज दिया, सर मैं जॉब देख रहा हूँ, सर कुछ जॉब है आप तो बताओ. ऐसा लिखने से या ऐसे बोलने से सामने वाले को बहुत अजीब लगता है, बहुत awkward लगता है. ट्रस्ट मी, मुझे भी लोग ऐसा करते, मुझे भी अजीब लगता है, कौन है यार. अपने जान पहचान वालों को भी ऐसा मत भेजना. इट ब्रेक्स योर रिलेशनशिप. उनको लगता है ये यार पीछे पड़ गया है, व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट फेयर. ऑलराइट, सो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर कॉन्टैक्ट्स appropriately and professionally. Number 4, don't ask for the job directly. किसी से भी डायरेक्टली जॉब मत मांगो, वरना क्या लगेगा उसको? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो ऑन डेट, सपोज किसी से गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पहली बार जाते हैं हम, तो क्या करते हैं? डू यू से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या डायरेक्टली? We don't say directly, right? We say indirectly. And many times what happens, every girl knows and every contact knows कि ये बंदे ने मेरे को अप्रोच किया है, मतलब ये जॉब ढूंढ रहा है. वो सब समझता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि इस बंदे ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से मुझे अप्रोच किया है. तो सिमिलरली जब ये गर्लफ्रेंड वाला सीन होता है, तो हर गर्ल जानती है कि बॉयज ने अप्रोच किया, मतलब उसका इरादा क्या है. बट दे लाइक द वे यू अप्रोच. मुझे अप्रोच करने का तरीका है, वो प्रोफेशनल तरीका, वो चिपकू वाला तरीका हो. दो चीजें, दूसरा उसका तरीका होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट तरीका होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए. सेम थिंग इज हियर व्हेन यू आस्क फॉर जॉब टू योर कॉन्टैक्ट. उसे लगना नहीं चाहिए कि बंदा चिपकेगा मेरे से, परेशान करेगा मुझे. दूसरा, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से आपको जाना चाहिए. ये दो तरीका है जाने के लिए. Alright, let's see. Do it indirectly, yes. And always be ready to be interviewed. जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सीनियर्स हैं, एलुमनाई हैं, जिसको भी आप कॉल कर रहे हो, कई बार ऐसा होगा आपकी लाइफ में, ये बंदा आपका खुद ही इंटरव्यू लेना चालू कर देगा. कई बार ऐसा होता है, कई बार दिखाने के लिए, कई बार सच्ची में वो इंटरव्यू लेगा, खुद ही सवाल पूछने लगेगा. और उस टाइम पे यदि आपने प्रोफेशनली उसको आंसर नहीं किया, you are gone out. You're out of the market. So always be ready. जब आप कॉल करते हो इन कॉन्टैक्ट्स को, तो आपके पास CV होना चाहिए और आपके पास वो आंसर्स होने चाहिए जो ये पूछ सकता है. All right. So these were 5 points you must take care of. So let me talk about how to give your introduction to your contacts. This is just one reference I am giving it to you. You can make it like this or you can just change it. For example,
You got a contact from your link, maybe आपके डैड के फ्रेंड हो, maybe आपका एलुमनाई हो, maybe आपके प्रोफेसर साहब हो, maybe आपका फ्रेंड का फ्रेंड हो, उसने एक कांटेक्ट दिया, तो डायरेक्टली कॉल मत कर दो. कॉल करने से पहले there is a manner, send him a WhatsApp message or email him that dear Vijay sir, I got your reference from Sunita Pal and she told me that you are an expert in production field. I am pursuing my final year engineering in chemical. Sunita suggested me that you might be able to share some thoughts. It would be great if you could share 5 minutes to speak with me. तो आपने देखा, इस डियर सर मुझे आपका रेफरेंस सुनीता जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप एक्सपर्ट है इस फील्ड में, मैं इसमें इंजीनियरिंग कर रहा हूं और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुछ शेयर थॉट कर सकते हैं मेरे साथ. तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड शेयर 5 मिनट्स विथ यू, 5 मिनट्स टू स्पीक विथ मी. यदि आप मुझे अपना 5 मिनट दे सकें तो आई एम गोइंग वेरी पोलाइट एंड प्रोफेशनल, राइट. तो ये करके आप कह सकते हो, कैन यू गिव मी योर 5 मिनट सर सो दैट आई कैन कॉल यू. ये सुनने के बाद किसी को क्या लगेगा? पहला बात, ये बंदा चिपकू नहीं है, क्लियर. दूसरी बात, ये बंदा जॉब मांग रहा है लेकिन इसका तरीका स्टैंडर्ड है. तो ही मे गिव यू टाइम, यस यार मुझे कॉल करो इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कॉल कर दो. हो सकता है बिजी हो तो बोलो सर यू आर बिजी, आई कैन कॉल यू लेटर, गिव मी सम टाइम, यू कैन टेक द टाइम. कई बार वो खुद कॉल कर लेगा आपको. तो दिस इज द वे टू गिव योर इंट्रोडक्शन टू योर कॉन्टैक्ट्स. ऑलराइट, ऑलराइट. अभी डोंट आस्क फॉर द जॉब डायरेक्टली. किसी से डायरेक्टली जॉब ना मांगे तो कैसे मांगे, लेकिन जॉब तो मांगना है. तो you can say hi when you get a chance to talk with these guys. Hi, I was updating my CV and wanted some inputs from you. What should I write there? मैं अपना CV अपडेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. मुझे क्या लिखना चाहिए कि मुझे चांस मिलेगा, शॉर्टलिस्ट होगा मेरे CV, है ना. तो इनडायरेक्टली आप क्या बता रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ. ये बंदा भी समझ रहा है कि आपको जॉब चाहिए, ढूंढ रहे हो, बट आप मांग नहीं रहे हो. करेक्ट, आप दूसरा कुछ मांग रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप जॉब ही मांग रहे हो. तो दिस इज समथिंग दे विल लाइक एंड ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू आउट. सेकंड, if you come across any contacts who are looking to fill in some vacancies, let me know. How should I try for this? I'm applying with all websites. If you could suggest me any other ways. So instead of लिखने में सर मैंने बहुत ट्राई किया, कहीं मौका नहीं मिल रहा सर, मुझे प्लीज जॉब दिला दो, ये बोलने से अच्छा ये बोलो कि मैं सब जगह अप्लाई कर रहा हूं और कुछ तरीका है तो बताओ. दोनों में डिफरेंस है, राइट. तो मैं कहीं से भी चिपकू नहीं दिख रहा हूं आपको, कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा हूं मैं भिखारी की तरह मांग रहा हूं जॉब दे दो यार. ये आपको ध्यान रखना है ना. डू यू नो एनी कॉन्टैक्ट इन दिस इंडस्ट्री और हाउ कुड आई अप्रोच? इस इंडस्ट्री में किसी को आप जानते हो, मैं किसी को अप्रोच कर सकता हूं? Alright, the note is be always clear what industry or types of companies you want to go and research about it before connecting. इन लोगों से बात करने से पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइप के इंडस्ट्री में जाना है और आप क्या ढूंढ रहे हो बिफोर टॉकिंग टू दीज गाइज. ऑलराइट, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च में आप कंपनी का नाम डालो, उसमें कुछ कनेक्शंस आपको दिखेंगे कि आप किनसे कनेक्टेड हैं इस कंपनी के, जो इस कंपनी में काम करता है. यदि आप उससे कनेक्टेड नहीं है तो यू कैन सेंड अ कनेक्शन रिक्वेस्ट पोलाइटली, जो अभी बताया उस टाइप से लिखकर एक रिक्वेस्ट डाल दो. दे कैन एक्सेप्ट, दे विल गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल और चेक करेंगे आप क्या लिखते हो. कभी भी लिंक्डइन में या किसी भी सोशल मीडिया में कोई नेगेटिव बात मत लिखना. बी विजिबल एंड ऑलवेज राइट समथिंग इंस्पायरिंग, इंफॉर्मेटिव. किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं लिखना, किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ मत लिखना, किसी की बुराई मत करना. ऑलवेज राइट पॉजिटिव थिंग्स. और if he sends you the, if he accepts your request, thank them and give your introduction. All right, so that was it for how to find a job in your through networking and through regular ways. And now let me talk about how to present yourself effectively in the interview. This is also very important.
There are 5 C's of interviewers, 5 C's which interviewers look for. Can you tell me some C's? Which are those 5 C's which an interviewer looks for? Communication, Very good. confidence. Very good. Wonderful. I don't know more. Okay, anybody else? Yes, communication is there. Confidence is there, of course. Anything else? Expression. Expression. Okay, that is body language. Very good. Yes. That can be covered in communication. Personality. Personality. Very good. Very good. Yes. What else? Sir, Monica says creative nature. Creativity. All right. Very good. Anything else? Dressing style. Hearing style. Style. Yeah. Okay. Okay. So style and all these things will expressions, personality, these things can be covered in confidence and your communication. All right, let's see. Yes, competence. सबसे पहले देखता है वो competence. Competence means, what is competence? Any idea? Competence is your skills. क्या skill set है आपके पास? आप एक इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, कंप्यूटर में स्ट्रांग हो, तो दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी. वो देखता है कि मेरा कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. आई नीड an engineer who can speak fluent English, who must have some computer knowledge. These are the skills. Do you have that? ये वो चेक करता है. Competence बोलते हैं इसको, right? You should have the competence, skill set. Basically, a skill set, skills. Second, कॉन्फिडेंस. बंदे में कॉन्फिडेंस है क्या? सो कॉम्पिटेंस में होता है कि आपके पास स्किल्स हैं, वो स्किल्स आप बताएं कि आई हैव दीज स्किल्स, और आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर स्किल्स, आर यू एबल टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, वो उसको चाहिए. ठीक है. दूसरा है कॉन्फिडेंस. आप में खुद पे भरोसा है क्या? आर यू सेल्फ assured? Yes, I can do it. That confidence, yes, I can do it. है या नहीं है? That is second. And third is communication, listening and speaking, both. Listening वाला बहुत कम होता है हम लोग में. हम लोग क्वेश्चन सुनते नहीं, आंसर पहले कर देते हैं, एंड दैट्स वेरी बैड. और जब भी बिना सुने आंसर करोगे वो आंसर गलत होगा. So better listen first and then prepare, take time and then answer. And next is capacity for growth. What is this capacity for growth? Is this guy really interested in working with my company? क्या इसने कुछ इंटरव्यू आने से पहले मेरा वेबसाइट चेक किया है? डज ही नो कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? डज ही नो कंपनी का क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या वो उसमें फिट करता है? इज ही इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ माय कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम? ये देखती है कैपेसिटी फॉर ग्रोथ. इज ही विलिंग टू ग्रो विथ माय कंपनी और नॉट? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. All right, and the last but not the least is chemistry. What is chemistry? Chemistry is very simple. Let me give you an example from your college. Suppose आपके ग्रुप में कुछ 5 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, और एक छठा बंदा आप में एंटर करना चाहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है लोग उसको एंटर नहीं करने देते हैं, और कई बार एंटर करने देते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है. Can you tell me what is the reason behind it? Hey, I'm asking a very simple question. Can you tell me what is the reason behind it? Yeah? Sir, can you please repeat? Okay, I'm saying chemistry is the last C which an interviewer looks for. जब कॉलेज में आपका 5 ग्रुप है, 5 लड़के और लड़कियों का, ठीक है, और छठा बंदा एंटर करना चाहता है आपके ग्रुप में, ठीक है, ये 5 लोग हमेशा घूमते साथ में हैं, खाते पीते साथ में हैं, फिल्म साथ में देखते हैं, और बैठते भी साथ में हैं, छुट्टी में भी साथ में मिलते हैं, साथ में सारा प्लान करते हैं.
और एक छठा बंदा इनके ग्रुप में आना चाहता है, इनको ज्वाइन करना चाहता है, तो विल यू अलाउ इजीली और विल यू हैव सम चेक, और करते हो We'll check, कैसे करते हो? we'll check whether the person will be getting involved in us or not. Very good, very good. Will be getting involved or not? Okay, very good. और क्या? What else? If that person is of any use. Any use? Okay, okay. और कुछ? His habits should match like ours. Yes, exactly. His habits, उसकी जो सोच है, उसके विचार हैं, वो आपसे मैच करना चाहिए. दोस्ती तभी होती है जब सोच विचार मिलती है, राइट? दोस्ती किसी से तभी होती है जब सोच विचार मिलती है, आपकी थॉट थिंकिंग प्रोसेस मिलती है, तभी फ्रेंडशिप होती है. तो पहले आप चेक करेंगे इस बंदे की जो सोच है, हैबिट्स है, वो क्या हम लोगों से मिलती है. यदि कॉमन होगी, यू विल गेट हिट इनसाइड. यदि नहीं होगी तो नहीं लेते हैं. वेरी सिंपल. दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री. लोग बोलते हैं ना यार, ये हीरो हीरोइन का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, राइट? तो ये केमिस्ट्री है कि आपसी तालमेल कैसा होता है, सोच विचार कितनी मिलती है. तो सेम थिंग अप्लाइज इन इंटरव्यूज. दे ऑल्सो लुक फॉर कि यार ये बंदा जो हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ क्या बैठने लायक है, क्या हमारे ग्रुप में आने लायक है, क्या हमारे जैसी सोच है इसकी. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो बिफोर इंटरव्यू यू हैव टू चेक कि ये बंदा इंटरव्यू कौन ले रहा है, उसकी सोच विचार क्या है, थोड़ा जज करो एंड देन टॉक एज पर देयर चॉइस. एंड व्हेन यू टॉक लाइक देयर चॉइस, यू आर इन. वेरी सिंपल. वो भी अपने जैसा एक बंदा ढूंढ रहा है, भले जूनियर बंदा ढूंढ रहा है, लेकिन वैसा ही बंदा ढूंढ रहा है. तो दिस इज अ राइट चांस फॉर यू. So work on these competence, confidence, communication, capacity for growth, and chemistry. All right. Thank you very much. Now, some guidelines. इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करना चाहिए हमको? पहली बात, रीड अबाउट द कंपनी. कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो, क्या है कंपनी, क्या बनाती, क्या बेचती. सेकेंड, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन मेनी टाइम्स. जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. हम कई बार इंटरव्यू में मैंने देखा है, ठीक है तुम क्या कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पता नहीं सर, वो सीवी लेके भेज दिया मुझे. ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं. तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उनको पता ही नहीं है. एंड दिस इज वेरी सैड. मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ. आई वाज ऑफरिंग देम करीबन कितने 7-8 साल पहले, और पैकेज था 2 लाख का. उस समय 2 लाख की वैल्यू थी, और उस बंदे को पता नहीं कौन से पोस्ट का इंटरव्यू है. बोला सर फ्रंट लाइन का कुछ तो जॉब है, मुझे पता है. बोला मतलब डेजिग्नेशन क्या है, पता ही नहीं. So guys, please read the job description very well. Okay. Third, make a list of expected questions and practice the answers. Always prepare questions and answers. लिखो उसको and practice करो. याद मत करो, practice करो. Number 4, they may ask you, do you want to know anything? लास्ट में हर इंटरव्यूअर पूछता है कि कुछ जानना चाहते हो कंपनी के बारे में, कुछ क्वेश्चन है आपका. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते. नहीं सर, थैंक यू, दैट्स ओके. यू मस्ट आस्क समथिंग. ऑलवेज कुछ पूछो, कुछ जनरल सा चीज पूछो, सिंपल सा चीज बोलो, लेकिन तैयारी करके जाओ. जैसे फ्यूचर ऑफ द कंपनी, अपॉर्चुनिटीज फॉर, क्या इस रोल का सर फ्यूचर में प्रमोशन होने के चांसेस हैं. सिंपल क्वेश्चंस लाइक दैट यू मस्ट आस्क. लेकिन उससे पहले तैयारी करके जाना पड़ेगा. इंटरव्यू में 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेस वेल लाइक अ प्रोफेशनल. टाई वाई पहन के जाओ. मैं भी टाई पहन के बैठा हूं सी लॉकडाउन में, राइट. एंड व्हेन आई टेक सम क्लासेस, आई वाज टेकिंग सम, कुछ लोग तो बस हाफ पैंट पहन के बैठ जाते हैं. वीडियो तो ऑफ रखना है तो गंजी पहन के बैठ जाते हैं. दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म, राइट. सो ऑलवेज ड्रेस वेल. लोग पूछते हैं टाई पहनना जरूरी है क्या सर इंटरव्यू में. मैं बोलता हूँ जरूरी नहीं है, बट क्यों रिस्क लो यार. 5 लोग बैठे हैं, वो पांचवा सोचेगा यार ये बंदा अच्छे से ड्रेस होकर आना चाहिए. और टाई पहनने से कोई भी आदमी पहले से तो स्मार्ट दिखता है, ये आप भी मानते हो, राइट. तो ड्रेस वेल लाइक अ प्रोफेशनल एंड देन गो फॉर इंटरव्यू. ऑलवेज कैरी 2-3 कॉपीज ऑफ रेज्यूमे विद क्लियर प्रिंट आउट. क्या पता वहां पे कोई रेज्यूमे खराब हो जाए तो आप दे दो निकाल के. 3-4 लोग बैठे हैं, सबको दे दो एक-एक.
right? And review your CV many times. अपने CV को इंटरव्यू में जाने से पहले 5-10 बार जरूर पढ़ो. एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है उसमें. So these were some of the guidelines before interview. Now let's look at during the interview. During the interview, stay focused. You have come for the interview. How to sit, how to behave. Be very clear on that. भूल मत जाओ. सामने वाले मजाक मस्ती कर रहे हैं तो आप भी चालू हो गए. No, don't do that. Have control on yourself. अपने भावनाओं को समझो, कंट्रोल करो. ऐसा नहीं कि वो हंस रहा है, वो रो रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है, क्या है तुम लोग तो ऐसे ही है, तो भावनाओं में बह के जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया. वो मत करना. कंट्रोल योरसेल्फ. रिमेंबर द मैनर्स कि आई एम इन अ प्रोफेशनल प्लेस. इवन इफ दे बिहेव अनप्रोफेशनली, आई हैव टू बिहेव प्रोफेशनली. रिमेंबर दिस पॉइंट. बहुत टाइम वो चेक करते हैं ऐसे करके कि आपका क्या बिहेवियर है. रिस्पेक्ट देम लाइक सीनियर्स. उनको जस्ट रिस्पेक्ट करो कि वो आपसे सीनियर है, भगवान नहीं है. जस्ट सीनियर्स हैं, जस्ट रिस्पेक्ट देम, दैट्स इट. एंड डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीबॉडी. जितना आप इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे उतना खुद को डिसरिस्पेक्ट करोगे. सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीबॉडी. जस्ट बी योरसेल्फ, बट बी द बेस्ट योरसेल्फ. Okay, number 4, be interesting and check your body language, especially your sitting postures and eye contact. How do you sit? That's very important. And eye contact. Look at the eyes. और जितने भी लोग हैं उन सबको देखना चाहिए आपको, सिर्फ एक को नहीं. सवाल एक ने पूछा, बट यू हैव टू लुक बारी बारी में सबको. That's called eye contact. And in the end, don't forget to say thank you. Even if आपका इंटरव्यू खराब हुआ है, थैंक यू बोलना मत भूलो. और in the end, of course, ask some questions related to your job. Well, this was it, but there are some very important key questions जो आपको तैयार करना चाहिए पहले से. ये 5 questions हैं जो हर इंटरव्यूज में मोस्टली पूछे जाते हैं, all the time. So you must prepare for these questions. You can take a screenshot of these questions, which are very important. You must practice these questions. एक question I'll take in front of view with you guys. Tell us about yourself. ये question इतना important है life में. If you answer this question correctly, 90% chances है कि you are through. And if you don't answer this correctly, 90% chances है you are out of the job. This question is the most important. Tell me about yourself. इसको आंसर कैसे कर सकते हैं? There are 3 steps. First, summarize yourself in just one sentence. My name is Vijay and I have recently completed my engineering in civils with 75% marks. Simple. One line, simple line. Second, speak about your achievements and strengths in 3 to 5 sentences. I have done a project ABC which has been appreciated by a chemical organization. I have been studying chemical engineering for 3 years. I feel it's of great use as the Indian market is growing 20% year on year. That is in medicine, equipment, warehousing, etc. My strength is the ability to understand what is the demand in the market, and accordingly, I love to solve it. I represented my football team on a state level. Being a sports person, I love challenges in my career. So in this entire discussion, मैंने क्या बात की? 2 ही बात की. मैंने अपनी अचीवमेंट बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट करा है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इस पर भरोसा है मुझे, इसका काफी स्कोप है, और ये स्ट्रेंथ है मेरा कि मैं डिमांड समझ लेता हूँ और उसके हिसाब में सोल्यूशन देता हूँ. मैंने फुटबॉल टीम को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से मुझे चैलेंज पसंद है. तो मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स बताई है इसमें. कैन यू सी दैट? मैंने कोई इधर उधर की बातें नहीं की, सिर्फ स्ट्रेंथ और अचीवमेंट. दैट प्रूव्स योर प्रोफेशनलिज्म. ओके, दिस वाज स्टेप 2. एनी कंफ्यूजन सो फार? एनी क्वेश्चंस? All right, I move forward. Tell us about yourself. Talk about
why you need the job in 2-3 sentences. Last में, what I look for is a challenging career where I can convert my passion and skills into result. मुझे जॉब क्यों चाहिए वो बताना है कि मैं एक चैलेंजिंग करियर ढूंढ रहा हूं जहां पे मैं अपने पैशन को, स्किल्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, जहां पे मैं ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एड वैल्यू कर सकता हूं, वैल्यू दे सकता हूं. दैट्स इट. एंड दिस वाज सेकंड क्वेश्चन. All right, this was it. And the last point is get the job you have confidently. And इसके बाद जब आपको कोई जॉब मिल जाता है, suppose you have 4-5 jobs at hand. So what to do? Which one to select? What should you look for? क्या देखना चाहिए? Opportunities, sir. कैसी opportunities? So that we can improve our skills. Okay, very good. So learning opportunity, yes. कि मैं जिंदगी में और कहाँ आगे जा सकता हूँ. वेरी गुड. और क्या देखना चाहिए? पैसा देखना चाहिए आपको. कौन ज्यादा पैसा दे रहा है वही ज्वाइन करेंगे? No, sir. Why no? Ultimately पैसा तो चाहिए ना. Money is not important because from the career point of view, we should go for the improvement of our skills. Very good, Harish. Lovely example. See, मेरे दोस्तों एक बात बताऊं honestly, money, success और beautiful girlfriend, boyfriend भी, yes, girls are also there. These things are something that are byproduct. Money और success हमेशा byproduct होते हैं. आप अपना काम अच्छे से करो, money will follow you. और आपने money को follow करना चालू किया, success को follow करना चालू किया, या girls के पीछे भागना चालू किए, तो वो भी आपसे दूर भागते जाएंगे. Right? So stop following money, stop following success, follow passion, learnings, skills. So आपको देखना चाहिए कि कौन सा कंपनी मुझे, कौन सा ब्रांड अच्छा है, which is a very good brand. अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए because अच्छे ब्रांड के साथ अच्छे लोग काम करते हैं, वहां पे सीखने को बहुत मिलता है. ठीक है. आपको ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पे अच्छा बॉस है. अच्छा बॉस होना बहुत जरूरी है. अच्छा बॉस आपको जिंदगी में ऊपर लेके जाता है और खराब बॉस आपको नीचे लेके जाता है. वो भी आपको देखना चाहिए. कंपनी का कल्चर कैसा है वो देखना चाहिए. पैसा तो बिल्कुल अभी नहीं देखना चाहिए. Well, this was it. Thank you very much. If you have any questions, you can please ask. I'm sorry. Hello, sir. Yes. Can you please tell how to deal with negative people? Negative people where? In the interviews or in general? Everywhere, like wherever we go for some good deeds or anything, there are more people who support you, but there are more people who even take you back, that who keeps on demotivating that you won't do this, you can't do this. Correct. Very good. Yeah. See, there are दो तरीका है उनसे डील करने का. जो बहुत सिंपल तरीका जो मैं जानता हूँ वो आपको बताता हूँ. एक है जो नेगेटिव आपको नीचे गिरा रहा है, उसको आप बोलो कि तूने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया है, तूने कुछ किया है क्या, उससे भिड़ जाओ, लड़ जाओ. इज इट गुड थिंग? No, sir. नो, इट इज नॉट अ गुड थिंग. इससे आपका जो ईगर है, जो आपकी जो परेशानी, वो और बढ़ जाएगी. तो क्या करें? यू जस्ट डू वन थिंग. ऐसे लोगों को इग्नोर करना चालू कर दो. आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? Okay, let me give you a practical example. What happened, one of my friend was always bullying me when I was working. तो मेरे बारे में अनठन बोलता था और मैंने हमेशा उसको रिएक्ट किया, हमेशा उससे लड़ता था, मैं उसकी बातों को जवाब देता था. ठीक है. एक दिन मैंने सोचा कि आज कुछ और करता हूँ. तो हम लोग कुछ 5-10 लोग बैठे थे, उसने फिर से मेरा पैर खींचना चालू किया, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, वगैरह वगैरह. तो मैंने उसकी बातों को, मैं चुपचाप बैठा रहा, उसकी बातों को अनसुना कर दिया. ठीक है. सोचो, एक जगह जहां 5 लोग बैठे हैं, एक बंदा कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, कुछ खराब बातें बोल रहा है, और मैंने उसकी बातों को सुना नहीं, अनसुना कर दिया और अपने काम में बिजी रहा. और मैंने ये भी नहीं दिखाया कि मैं गुस्सा हूं, मैंने ये दिखाया कि तेरी बातों तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो पता है क्या हुआ? ये बंदा परेशान हो गया कि यार मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है.
और उससे लगा कि मैंने उसकी इंसल्ट कर दी सबके सामने. So when this happens, and at that day I felt really proud. और उसके बाद से उस बंदे ने पता नहीं क्यों लेकिन मेरा इंसल्ट करना बंद कर दिया. So when somebody insults you, just ignore as if कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने सुना ही नहीं है. तुम्हें वो 2-3 बार और बोलेगा, कई बार जोर से भी बोलेगा, कई बार एग्रेसिव भी हो जाएगा, फिर भी तुम उसको इग्नोर कर दो. तो इग्नोर इज द बेस्ट मंत्र यू कैन यूज हियर. और सेकेंड बात है, जिंदगी में जब कोई आपको पीछे खींचता है या पीछे खींचने की कोशिश करता है, आप कभी भी चेक करना, ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाते हैं. तो ये चाहते हैं कि तुम भी खास ना करो, तो खींच के तुम्हारे बराबर लाना चाहते हैं. ठीक है? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, एनीथिंग एल्स? Do we have any more questions? Sir, can you please share your Hello. email ID in the chat box? Yes, I can share. Yeah. Yes, Hello, yes, Ritesh, yes, sir. sir. Yeah. Sir, it was a very nice session. You conducted very wonderful and shared a lot of information with us. Thank you, sir. And this year, these new guys will take this benefit a lot. Hope so. Yeah. Okay. And we are going to share a feedback link with students. So we expect all the students, let's share, we expect a genuine response, genuine feedback and the comments, so if any, so that we will be looking forward Ritesh sir sessions every semester. Yes, you can tell me what else I should have Correct. given for you, और क्या मुझे ऐड Yes. करना चाहिए था, या कुछ नहीं दिखाना, कुछ कम करना था. I mean, I know I took more time because I thought Yeah. I should share all those things जो आपके लिए important है और जो हमारे टाइम में हमें नहीं मिला था. I should share all those things. So if you want, Correct. if you think that मुझे कुछ और चाहिए शेयर करना था या कुछ चीज मैं मिस किया, let me know. That will also Yeah. help me. That was not, see, my point was like, everywhere we are focusing point to the point, right? And this today's session was really nice. If I think few of them students from the BE class, they were not there, I think, right? And if students last year we conducted the same session, not same session, but you interacted with the BE students, and this is completely going to be passing out right now. I remember some Manasvi Agrawal, I think, was there in your college. Correct, sir. And these guys, got the placement opportunity. Almost Okay. 24 students got the placement opportunity. Oh, very good. That's Correct. good. And so that's for the same I expect from these guys also. So let's be point to the point, and Ritesh sir will be there. And I appreciate Nitin and Rahul also. They connected to you, and again we meet together again for this new guys also. Really thankful. Despite of this pandemic situation, you so conducted very nice sessions, sir. And I was just observing how you are feeling that classroom feel and this online feel is completely different. Yeah. Okay. Yeah. Still you managed a lot of things. Yes, I mean it's different. जब वहाँ पे सामने होता है तो पता चलता है कि कैसा हो रहा है. आप पता नहीं चल रहा मुझे कौन क्या सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. Who is saying what? I could not engage people here because in online engage करना थोड़ा मुश्किल है because we are also new with this platform. Correct. So we are also learning how to do in online platform, online sessions. Correct, sir. Yeah, but still, I personally thankful to you. You conducted a very nice session, and almost all the contents were useful. If students take this content at their level, that you made a quadrant over there. Second quadrant was very important, and really, this is it's important. And we have a recording of this also.
I'll put out this recording to all the T and B students also. If you can share with me also, that will be good. Yeah, right. Yeah, thank you, sir. Thank you. And Prachi, please go ahead. Yeah, sir. Thank you, sir. It was our pleasure to have you here. It was really a very good session. I'd like to call Sakshi to represent the vote of thanks. Sakshi, you're there? Yes, Prachi. Yeah, please proceed. Yes. On behalf of Training and Placement Cell of PVGS College of Engineering and all the students, I would like to thank our today's honorable expert, Mr. Ritesh Kumar sir. Thank you so much, sir, for taking the time out from your schedule and sharing a valuable information and knowledge with us. Next up, I would like to thank Professor R.K. Patil sir, TPU of PVGS College of Engineering, for initiating the webinar series and organizing the SUM along with all the team members, which is very beneficial for all of us. And last but not least, I would like to thank all the candidates for joining with us and attending the session patiently. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Ritesh, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.